Hi everyone, Lisha Roy this side. So as we are discussing the fractures, so we are starting with the Leaford fracture. What is Leaford fracture? Leaford fracture is the fracture of the faciocranial part. Okay, it is divided into three: Leaford 1, Leaford 2, and Leaford 3. So the first one is your Leaford 1. What the Leaford 1 says you that in Leaford 1, this is the fracture is like this. Okay, so it is known as your low level fracture, subzygomatic fracture, horizontal fracture, Guring fracture, and floating fracture. Low level, as it is an craniofacial fracture, so it is in the low level of the craniofacial part. Second, it is of your subzygomatic. This is your zygoma, and just below over it is your subzygomatic. Then horizontal, as you can see the line, that is horizontal. Then Gurin is a clinical feature, and fifth one is your floating, because this fracture causes floating of the dentoalveolar part. Okay, now what causes your Leaford fracture? Okay, as you all know that there is some force applied. As you can see this, okay, you can see a very small bag, that is this. When there is a force in your inferior nasal aperture or in the maxilla directly, or over this part, okay, then it causes your Leaford 1 fracture. Not only that, in the Leaford 1 fracture, it causes a fracture line. So the fracture line is like this. First of all, it goes through the lateral margin of the anterior nasal aperture, as you can see over here. Here it all started. So this is the first part. So lateral margin of the anterior nasal aperture passes above the nasal floor. So this is the nasal floor, this is the nasal floor, and it passing just above the nasal floor, and it is the lateral margin of the anterior nasal aperture. This is your first, means it started from here. Then second says it passes laterally above the canine fossa. So what is the canine fossa is telling about? This is my canine and this is the canine fossa. So just above the canine fossa, transverse lateral antral wall. It is a transverse lateral antral wall. This is the second part. So this is the second part. Then third part says that passes down below the zygomatic buttress. So what is the buttress? This is the buttress. Okay, so this is the buttress, and it passes down. You can see the red line that passes down the zygomatic buttress and inclines upward and posteriorly. Where it inclines upward and posteriorly, as you can see, first it goes upward and then your posteriorly up to this part. So this is my third part, and in the fourth it goes to the pterygomaxillary fissure to fracture the pterygoid lamina. This is your pterygoid bone. I will see the posterior part also. So this is the pterygoid bone. Here it fracture at the pterygoid lamella at the junction of the lower third and the upper two third, at the junction of the lower third and the upper two third. So this figure says you about the fracture line. It is the your anterior or your frontal part. Then what is your posterior part says that, as I have told you, from the same starting point of the fracture, it also passes through the lateral wall of the nose. This we have seen in the first picture. So here you can see that I have told you it breaks or it goes to the pterygomandibular plate. This red line, please visit this red line, to join the lateral line of the fracture behind the tuberosity. It joins the lateral line of fracture behind the tuberosity. So this picture depicts you all the fracture line. The fracture line is necessary to understand because it will tell you about your the fracture, where it begins at the lateral side of the nose, then it goes to the canine fossa, then it comes under the zygomatic buttress, and then it end up by your downward, forward, and then pterygoid plate. It may be unilateral, it may be your bilateral. Okay,
So this is the animation. That's why we called it as a floating bone. That's why we called it as a floating bone, because this is the animation. यहाँ से ये टूट जाता है तो ये जो पूरा जो पार्ट है ना मैक्सिला का, ये फ्लोट करने लग जाता है. Okay, I think this is clear for you for Lee-Ford fracture 1. Other than this thing, you can see the fracture line of pterygomandibular disjunction. As you can see, this are pterygomandibular disjunction. This is the picture which actually depict the your Lee-Ford 1 fracture. So this is the fracture. What will be the clinical signs of it? In the first clinical sign, there is an bruises. Okay, so that is the bruises. First you can see the bruises over the upper lip. Then second, you can see there is an unilateral epitaxis. Okay, you can see there is an unilateral epitaxis. There is a bleeding from the nose. Then you can see the maxillary part or the whole this lower part floating. Even this is a way to check the clinical features of it. Then you can see, if we open the mouth, then we can see the maxilla is coming forward. That is the telescopic view. That the maxilla is coming forward. Then you can see the enchymosis in the palate. मतलब खून जम जाना. तो हम लोग को पैलेट में ऐसे रेड कलर के ब्रूशेस या फिर आपको एनकाइमोसिस दिखेगा. Now come to your Lee-Ford 2 fracture. Lee-Ford 2 fracture is also known as your pyramidal fracture. So, why it is pyramidal? As you can see in the photograph that I have make a marking that from where it started and where it end, and it goes to the downward force. That's why it is known as your pyramidal and your Lee-Ford 2 fracture. In the Lee-Ford 2 fracture, as I have shown you the diagram in the Lee-Ford 1, that the Lee-Ford 1 fracture gives a force over here. So in the Lee-Ford 2, it gives a force over here. If there is any force over here, then we can call it as a Lee-Ford 2 fracture. Okay. अगर हम लोगों का कोई भी टाइप का फ्रैक्चर अगर मैक्सिला में आता है तो इसको हम लोग 1 डिपिक्ट करते हैं. पर अगर ये थोड़ा सा अबव में अगर जाता है और यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई भी चोट लगता है ग्लैबुला से शुरू करके आपका एंड ऑफ द नेजल एपरेचर तक या फिर एट द टिप ऑफ द नेजल एपरेचर तक, देन इट कॉजेज योर Lee-Ford 2 fracture. In the Lee-Ford 2 fracture, it involves your whole your maxilla to your glabella. So where the part of the fracture line goes is your frontonasal suture from the thin middle area of the nasal bone. It goes to the frontonasal suture from the thin middle area of the nasal bone. ये कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्रंटोनेजल स्यूचर से. यहाँ पे आप पहला पार्ट देखिए. पहला पार्ट में पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ये फ्रंटल बोन और नेजल बोन जहाँ पे मिल रहा है वो फ्रंटोनेजल स्यूचर. एक थिन मिडिल एरिया ऑफ द नेजल बोन, ये हम लोग का क्या है? ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का थिन नेजल बोन है. थिन नेजल बोन है हम लोगों का. ठीक है. नाउ अब ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? क्रॉसिंग टू द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड पासिस द एंटीरियर अक्रॉस द लैक्राइमल बोन. ये हम लोग का फ्रंटल बोन में ये हम लोग का क्रॉस कर रहा है मैक्सिला तक. ठीक है. एंड पासिस एंटीरियरली अक्रॉस द लैक्राइमल बोन. इट क्रॉसेस जैसे मैंने ये सेकेंड पार्ट मैंने आपको दिखाया है. ये जो सेकेंड पार्ट ये ब्लू करके मैंने आपको दिखाया, तो ये हम लोग का ये बोल रहा है कि फ्रंटल प्रोसेस से पास तो कर रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है? ये हम लोग का मैक्सिला तक जा रहा है. ठीक है. एंड पासिस एंटीरियरली अक्रॉस द लैक्राइमल बोन. और ये जो लैक्राइमल बोन के ये ऐसे करके जो लाइन है, तो ये हम लोगों का लैक्राइमल बोन से होते हुए मैक्सिला तक जा रहा है. एंड देन इमीडिएटली एंटीरियर टू द नासोलैक्राइमल कैनाल. और फिर ये हम लोग का इमीडिएटली नासोलैक्राइमल कैनाल्स में हम लोग का ये पास आउट हो जाता है. So again a picture I will show you on this fracture line only, which will tell you more clearly about this about it. Okay. तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग का ये थिन पार्ट से शुरू होता है. सी मैं आपको कलर डिपिक्ट से मैं आपको बता देती हूँ. ये आपका पहला पार्ट. ठीक है. अब ये कहाँ पे गया? पासिस डाउनवर्ड. देखिए
ये यहाँ इस तरफ देखिए, पासेस डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लैटरली। ये हम लोग का कहाँ गया, पासेस फॉरवर्ड डाउनवर्ड, नीचे क्या फॉरवर्ड, फिर आगे क्या और थोड़ा लैटरली क्या, फिर ये कहाँ तक पहुँचा, इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। ये हम लोग का क्या है, इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन तक गया। यह हम लोग का इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन इन्वॉल्व कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। फिर हम लोग का ये कहाँ गया, ये हम लोगों का क्या, जाइगोमेटिक बट्रेस तक। फिर ये हम लोग का कहाँ गया, जाइगोमेटिक बट्रेस तक, ठीक है। इट इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग बट वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का जब इन्फीरियर जाइगोमेटिक बट्रेस के बाद यह कहाँ गया, हम लोग का टेरिगॉइड लैमिना में, इन द मिडवे फ्रॉम इट्स बेस यू कैन सी दिस। सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट मेरा ये जो कि मेरा फ्रंटोनेजल स्यूचर से शुरू होता है। सेकंड पार्ट मेरा ये जो कि मेरा इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन तक जाता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लैटरली करके। और थर्ड पार्ट मेरा ये जहाँ पे मेरा टेरिगॉइड लैमिना तक जाता है, अप्रॉक्सीमेटली मिडवे तक, अप्रॉक्सीमेटली मिडवे तक, ओके। So this is the fracture line of the Lefort 2 fracture. It may be unilateral, it may be your bilateral. ये पूरा डायग्राम में आपको बायलैटरली शो हो रहा है। तो ये प्लीज़ ये एनिमेशन आप अच्छे से देखिए। आप देखिए ये कहाँ से ये शुरू हो रहा है, कहाँ तक ये जा रहा है। और एक बार मैं बता देती हूँ। देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट जो कि फ्रंटोनेजल फ्यूचर हो गया। ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट जो कि मेरा फॉरवर्ड, जो कि मेरा डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लैटरल पार्ट में जाके इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन में घेर रहा है। और ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट जो कि मेरा टेरिगॉइड प्लेट में जाके ये ब्रेक डाउन कर रहा है। और ऐसे करके पिरामिडल शेप में हम लोग का हो जाता है ब्रेक डाउन। अब आ जाते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर में। पहला क्लिनिकल फीचर क्या है, ईडिमा। आप डायग्राम में या इमेज में अच्छे से देख रहे हैं, मिडिल 1/3 ऑफ द फेस में ऐसा फील होता है जैसे बेलुइंग ऑफ द फेस हो, या फिर हम लोग का ये मून फेस टाइप का हम लोग को शो होता है। अदर देन दैट हम लोग अगर हम लोग आइज़ को अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को उसमें दिखेगा सर्कम ऑर्बिटल इडिमा, एनकाइमोसिस, ब्लैक आई एंड रैकून आई। तो हम लोग को क्या क्या दिखेगा, सर्कम ऑर्बिटल इडिमा, एनकाइमोसिस, योर ब्लैक आई एंड योर रैकून आई। रैकून आई क्या होता है, एक एनिमल होता है रैकून, उसके तरह हम लोग का आइज़ हो जाता है। अदर देन दैट आप प्लीज़ इमेजेस के साथ क्लिनिकल फीचर को देखिए। देन सब कंजक्टिवल हेमाटोमा कन्फाइंड इन मीडियल हाफ। मीडियल हाफ में मेरा सब कंजक्टिवल हेमाटोमा दिखेगा, एज वेल एज ये जो सेकेंड डायग्राम है डिप्रेस्ड नेजल बोन एंड योर फ्लैट फेस। यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, डिप्रेस्ड नेजल बोन एंड योर फ्लैट फेस। और एक चीज़, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट मूव अपवर्ड, और जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है वो ऊपर के तरफ चला जाएगा और फेस जो है वो शॉर्टनिंग हो जाएगा। एज वेल एज अ डेंटल सर्जन वी कैन ऑल्सो सी एंटीरियर ओपन बाइट। अगर फ्रैक्चर हम लोग का डाउनवर्ड जाता है तो फिर हम लोग को इलोंगेशन ऑफ द फेस होगा, पोस्टीरियर गैगिंग ऑफ द ऑक्लूजन होगा, एंटीरियर ओपन बाइट इसमें भी होगा, और हो जाएगा हम लोग का डिश शेप्ड फेस, और हो जाएगा हम लोग का डिश शेप्ड फेस। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लिनिकल फीचर में द स्वेलिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग का यूनिलैटरल हुआ तो हम लोग को यूनिलैटरल स्वेलिंग भी दिखेगा, ठीक है। एज वेल एज गैगिंग होगा, एज वेल एज एंटीरियर ओपन बाइट होगा। इवन हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग सर्जिकली अगर हम लोग इसमें देखेंगे, रिडक्शन करने का कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी हम लोग इसमें योर पोस्टीरियर गैगिंग, एंटीरियर ओपन बाइट और योर डिश शेप फेस दिखेगा। अब आ जाते हैं हम लोग लीफोर्ड 3 फ्रैक्चर में, ठीक है। लीफोर्ड 3 फ्रैक्चर क्या बोल रहा है, इनिशियल इम्पैक्ट इज टेकन बाय द जाइगोमेटिक बोन और द डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग का जो लीफोर्ड 1 फ्रैक्चर होता है उसमें हम लोग का क्या होता है, उसमें हम लोग का जो फ्रैक्चर लाइन होता है, जैसे मान लो जी कि ये हम लोग का अगर फेस है, अगर मान लो कि ये हम लोगों का फेस है, ये हम लोग का फेस है, ओके।
तो फेस में अगर फ्रैक्चर लाइन अगर मेरा यहाँ पे जाता है या फिर यहाँ पे जाता है तो फिर मेरा हो जाएगा ये 1। अगर यहाँ पे जाता है तो हो जाएगा मेरा 2। पर ये अगर मेरा ऑर्बिट है और यहाँ पे जाता है तो फिर ये हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3। तो दिस इज़ द वे वी डिफाइंड एज योर लीफोर्ट 1, लीफोर्ट 2 और लीफोर्ट 3। जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ये लीफोर्ट 1 हो गया, ये लीफोर्ट 2 हो गया। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग लीफोर्ट 3 के बारे में। लीफोर्ट 3 को पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक ऑर्बिट में कितने बोन होते हैं। ठीक है, फ्रंटल, मैक्सिला, लैक्राइमल, एथमोइडल, स्फेनोइडल, पैलेटाइन एंड जाइगोमेटिक, इतने सारे बोन्स होते हैं। और एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है इसमें कि इसमें क्या होता है, ये जो टेरिगॉइड प्लेट है ना, सारा का तीनों के तीनों फ्रैक्चर हम लोग के टेरिगॉइड प्लेट को ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे लोअर लेवल का जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है लीफोर्ट 1 की वजह से। जो सेकेंड वाला जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है मेरा लीफोर्ट 2 की वजह से। और जो जो थर्ड वाला जो ब्रेकआउट होता है वो होता है मेरा लीफोर्ट 3 की वजह से। ठीक है, तो टेरिगॉइड प्लेट में भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लीफोर्ट 1, लीफोर्ट 2 एंड लीफोर्ट 3। और लीफोर्ट 3 का जो फ्रैक्चर होता है वो यहाँ से, जैसे ऑर्बिट में, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर ऑर्बिट में अगर फ्रैक्चर है तो फिर हम लोग इसको लीफोर्ट 3 के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। सो यू कैन सी इन दिस एनिमेशन नाउ। अब क्या होता है कि मैंने बोला कि लीफोर्ट 3 का जो फ्रैक्चर होता है वो मेरा इस ऑर्बिट में लगता है। ठीक है, ऑर्बिट का फ्रैक्चर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा ऑर्बिट का फ्रैक्चर, मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, अगर मेरा ऑर्बिट का फ्रैक्चर अगर यहाँ से लगता है, 1 सेकेंड, अगर मेरा ऑर्बिट का फ्रैक्चर अगर मेरा यहाँ से दिखता है, ठीक है, अगर यहाँ से दिखता है तो फिर क्या होगा कि इसका ना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये वाला फोर्स यहाँ पे जाएगा और ये वाला फोर्स इस वाले ऑर्बिट में जाएगा। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट हम लोग को मोबाइल हो जाएगा। जैसे कि stabilizing the head and gripping of the maxillary teeth with one hand and simple manipulation will confirm the complete movement of the middle third of the face। इसमें ये बोला है अगर हम लोग हेड को एंड देन ग्रिपिंग ऑफ द मैक्सिलरी टीथ करेंगे तो विथ वन हैंड एंड सिंपल मैनिपुलेशन करेंगे तो हम लोग ये कंफर्म हो जाएंगे कि जो कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस है वो हम लोगों का इसके कारण हो रहा है। एंड द मोबिलिटी ऑफ द होल स्केलेटन एज अ सिंगल बैक टू बी फेल्ड। ठीक है, तो दिस ऑल द फीचर्स ऑफ योर क्लास 3 लीफोर्ट फ्रैक्चर। एंड अदर क्लिनिकल फीचर्स आर योर रैकून आइज। ये एनिमल होता है रैक्यून। रैक्यून का आप आइज अच्छे से देखिए, आइज के चारों तरफ ब्लैक हो जाता है, एनकाइमोसिस हो जाता है और पेरी ऑर्बिटल एनकाइमोसिस एंड ग्रोस इडिमा हम लोग को दिखता है। सो दिस इज द फीचर ऑफ योर क्लास लीफोर्ट क्लास 3। देर इज़ एन टेंडरनेस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे फोर्स लगा और पूरा का पूरा सेगमेंट हम लोग को मोबाइल हो गया, तो उसके कारण हम लोग को टेंडरनेस दिखेगा, सेपरेशन ऑफ द फ्रंट टू जाइगोमेटिक फ्यूचर दिखेगा और हम लोग का फेस का लेंथनिंग भी दिखेगा लीफोर्ट 3 के कारण। अदर देन दिस, जो हम लोग का जो एंटायर जो मिडिल थर्ड है वो हम लोग का क्रेनियल बेस से हो जाएगा डिटैच्ड। जो हम लोग का एंटायर जो क्रेनियल बेस है ये हम लोग का डिटैच्ड हो जाएगा और ये जो हम लोग का जो टीथ है वो हम लोगों का टिल्टेड हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा और बैकवर्ड हो जाएगा। इवन पेशेंट विल फील सम गैगिंग मूवमेंट, और पेशेंट हम लोगों का गैगिंग मूवमेंट भी फील कर पाएगा। इट्स अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन। अदर देन दैट इसमें हम लोग का फ्लैटनिंग, वाइडनिंग, डेविएशन ऑफ द नेजल ब्रिज भी होगा। तो क्या क्या होगा, फ्लैटनिंग, वाइडनिंग, deviation of the nasal bridge. Then another thing which we can see in the eye is enophthalmos, diplopia, impairment of the vision and temporary blindness. Enophthalmos, diplopia, impairment of the vision and your enophthalmos. Okay, so this all the things I have told you about your Lee fractures. Please go through it with all the images. Thank you.